Children, in this video, I am going to explain fifth part of question number 5 of exercise 8.4, which is Introduction to Trigonometry. Now, this part is different from other parts which you have already done or which you will be doing further. Now, why is it different? ये मैं आपको बताने वाली हूँ. First of all, I have taken the left hand side. ठीक है. जनरली बच्चों हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया है, जनरली मोस्टली हम अपने क्वेश्चंस को कॉस और साइन में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, कहीं कॉसेक लिखा हो तो 1/sin, कॉट को कॉस अपॉन साइन, टैन को साइन अपॉन कॉस. बट इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी कॉस और साइन है. हम इनको कॉस और साइन से कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करने वाले हैं. ठीक है. नाउ कॉस, साइन और 1. How can I get cosec? Cosec is 1/sin. Cot is cos upon sin. So I am dividing the numerator by sin. Dividing and denominator also, because I cannot only divide the numerator, I have to divide the denominator also. So dividing numerator and denominator बाय साइन ए. चिल्ड्रन, जब भी डिवाइड करना है ना आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो याद रखना यू हैव टू डिवाइड ईच टर्म. यू कैन नॉट डिवाइड जस्ट वन टर्म बाय साइन ए. द होल न्यूमरेटर हैज टू बी डिवाइडेड बाय साइन ए. तो यू आर गोइंग टू गेट, सो दिस इम्प्लाइज यू विल गेट कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1/sin ए. ठीक है, न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया आपने साइन ए से. सिमिलरली यू विल बी डिवाइडिंग ऑल टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर बाय साइन ए. तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1/sin ए. So children, what will you get here? This is equal to cos A upon sin A will give you cot A, minus sin A upon sin A will give you 1, and 1/sin A is equal to cosec A, upon again cos A upon sin A, cot A, plus 1 minus cosec A. Now this is very important part of this question which I am going to do right now. And what is that? This I am going to tell you. Now children, generally हम जैसे आइडेंटिटीज़ में सपोज a² माइनस b² लिखा हो तो a प्लस बी, a माइनस बी. साइन स्क्वायर लिखा हो, साइन स्क्वायर a, तो वी पुट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर a एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर a. लेकिन यहाँ पर ये क्यों डिफरेंट है क्वेश्चन? यहाँ हम 1 की वैल्यू डालने वाले हैं. अब आप सोचोगे 1 की वैल्यू मतलब 1 की वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉट ए एंड कॉसेक ए. यू नो दिस आइडेंटिटी की, let me write the identity. We know that cosec square A minus cot square A is equal to 1. This you know. Now 1 की जगह पे we are going to write this. How? So देखो, let me tell you. Cot A will be written as cot A only, plus cosec A will be written as cosec A only, minus 1. This 1 will be written as cosec square A minus cot square A. Okay. At the place of 1, I have written this. Cot A plus cosec A I have written together, and at the place of 1 minus 1 was there, I have written minus cosec square A minus cot square A, upon, I will not touch the denominator. Denominator will be written as it is, cot A plus 1 minus cosec A. Okay.
Now what will happen? Now children, I will consider this as one term. I have put it in a bracket so that this can be considered as one term. Now look at this one. Here you can use the identity of a square minus b square. So let us use the identity here. This is equal to cot a plus cosec a माइनस, अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपको राइट हैंड साइड में चाहिए वो बस इतना ही चाहिए, बाकी सभी आपको किसी ना किसी तरीके से रिमूव करना है, ठीक है. माइनस, आई एम पुटिंग अ बिग ब्रैकेट हियर बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, सॉरी कॉसेक ए माइनस कॉट ए और cosec A प्लस cot A, ठीक है, अपॉन cot A प्लस 1 माइनस cosec A. Here we can write the identity because you can write the identity here, a square minus b square is equal to a plus b, a minus b, ठीक है. This identity you can write. Now children, again there are something which you must know. तो आपकी यहाँ पर जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो स्ट्रॉन्ग होने बहुत ज़रूरी है. अब आप ध्यान से देखो, देर आर 2 टर्म्स इन द क्वेश्चन. आपको मालूम है हर प्लस माइनस साइन जो ब्रैकेट के बाहर होता है तब टर्म चेंज होती है. तो दिस हैज़ बीन कंसिडर्ड एज वन टर्म. इसको मैंने ब्रैकेट में डाल लिया, एक टर्म ये हो गई और एक ये रही, ठीक है. तो वन टर्म दिस एंड वन टर्म दिस. ध्यान से देखो बच्चे, व्हाट इज कॉमन इन दीज 2 टर्म. अगर आप इसको केयरफुली देखोगे तो आप देखोगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. कॉसेक ए प्लस कॉट ए या कॉट ए प्लस कॉसेक ए एक ही बात है. तो ये दोनों यहाँ पर है, तो आपने इसको कॉमन ले लेना है. कॉट ए प्लस कॉसेक ए की पूरी ब्रैकेट आपकी कॉमन आ गई. जैसे ही हम कॉमन लेते हैं ना, कॉमन लेते ही ब्रैकेट्स, तो कॉमन लेते ही ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है. ओके, अब जैसे ये ब्रैकेट स्टार्ट हुई बच्चे, नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर. इधर देखो आपका क्या रह गया है. इधर आपके पास बचा है 1, क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट आपने कॉमन ले ली है. तो इस जगह पे 1 इज देयर. क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि 1 कहाँ से आया, तो बच्चे क्योंकि हमने कॉमन ले लिया है तो जब ये कॉमन चला गया तो इस जगह पे 1 बच गया, ठीक है. 1 के बाद देखो ये माइनस है, हम भी माइनस लगाएंगे और मैं ब्रैकेट डाल रही हूँ. अब इधर से ये आपका कॉमन में चला गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए. तो यहाँ पे क्या बचा है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है. तो ये स्टेप आपको समझ आना ज़रूरी है क्योंकि यही है मेन स्टेप इस क्वेश्चन का, उसके बाद कुछ भी नहीं है. अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है. तो दिस इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉसेक ए, and here you will open the bracket 1, this will become minus cosec A, and when there is a minus sign outside the bracket अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस कॉट ए, ठीक है. अब देखो बच्चे, अगर आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो तो ये डिनोमिनेटर आपका मैच करता है किससे, ये पूरी इस ब्रैकेट से. देखो यहाँ पर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर माइनस कॉसेक है, ये रहा माइनस कॉसेक है, और प्लस कॉट ए है, प्लस कॉट ए. तो ये चीज़ और ये डिनोमिनेटर एकदम सेम है. और क्योंकि यहाँ ब्रैकेट्स है तो बीच में एक तरह का मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये पूरी की पूरी जो ब्रैकेट है ये आपकी डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगी एंड यू विल बी लेफ्ट विथ कॉट ए प्लस कॉसेक ए which is equal to your right hand side. ध्यान से देखो, cosec a प्लस cot a या cot a प्लस cosec a एक ही बात है. तो फिर से हम लिखेंगे LHS is equal to
RHS, hence proved. ठीक है, तो I hope you have understood this question.